अक्टूबर 1 से हमारे यहाँ कोविड में एक रूल नया आ गया है। और मैंने बड़े दिनों बाद एक हिंदी सीरीज देखी है। बताना हमें कमेंट करके अपनी अपनी चॉइसेस। So one thing anyone would say I hate about Saskatoon. आप लेके आए हो? Hello जी, welcome to another video. Today is Wednesday, and I have a different teachers today. Every Wednesday, there's a different teacher. चलो जी, every Wednesday she has a different teacher and Wednesday is also a garbage day. आज रिसाइकिल गार्बेज जाना है, मैं रात को रखाया था। आप देख रहे होंगे कि क्या हम आज ऑफिस जल्दी जा रहे हैं। नेरा हुआ हुआ बिल्कुल नेरा, ये देखो। दिस इज हाउ आउटसाइड लुक्स लाइक। छोटा सा मून दिख रहा है ऊपर। इफ आई जूम अ लिटिल बिट, या दैट्स मून। Oh wow, that looks so beautiful. And then this is how the day is looking. So does that mean that we are going to office early today? No, No, look at the time. It's 6:30. So हम जल्दी नहीं जा रहे, हम अपने टाइम से ही हैं। लेकिन अब दिन जो है लेट होता है, जैसे सर्दियों में आपको पता ही है, हर जगह ऐसा होता है। तो अब ऐसा होगा कि हम अंधेरे में ही जाया करेंगे धीरे धीरे, और वो इंटेंसिटी ऑफ डार्कनेस इज गेटिंग मोर एंड मोर। I'm wearing my new watch to school. ये जो विजन इलेक्ट्रॉनिक्स लाई थी वॉच अपनी, वो दिखा रही है आपको। आज का मेरा लंच जो है वो मेरा फेवरेट है, विच इज मटर वाले चावल एंड साथ में Tried that last दही। night. हाँ, साथ में दही। और नेहा ने भर भर के चावल दे दिए हैं मेरे को, बहुत ज्यादा। ये खुद ना, ये इसकी साजिश है, साजिश कि मैं डाइटिंग कर लूं और जस को ना करने दूं। मुझे पता है कि फेंक के तो आएगा नहीं। ये हमें अब रिसोर्सेज, चीजें, इन सब की वेस्टेज नहीं करनी। इसका हमारा गलत फायदा उठाया जाता है। एवरी टाइम दिस हैपेंस विद मी। इस बार आई थिंक वी आर लकी सो फार कि जो फॉल था काफी वार्म था। 2 दिन ही आए थे जब जैकेट की एक्चुअल जरूरत पड़ी, वैसे ठंड थी नहीं इतनी फॉल में। सो मम्मी पापा को लेने पहुंच गया हूँ। टेम्परेचर है 12 डिग्रीज, इट्स नॉट बैड ऑल। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है इंडिया से कनाडा, आपको पता होगा पहले तो। लेकिन अभी भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो है ना, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं अगर आपको डायरेक्ट फिर भी आना है, क्योंकि एक ही सेंटर है दिल्ली एयरपोर्ट पे जो आपने कराना है टेस्ट वहाँ से। सो इट माइट टेक लॉन्ग टाइम टू उसे टेस्ट कराने में, एंड देन यहाँ फिर उसके बाद फ्लाइट लो। So I don't know why in Canada is not allowing people to get tested from anywhere else, like not just one center in Delhi but anywhere else. सत श्री जी, पापा आ गए हैं, मम्मी की वेट है एंड चलते हैं। मैं क्या भाई, मैं कहना पाया कि मैं डायरेक्ट फ्लाइट तो शुरू हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम है वे कि एक सेंटर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बस ਜਿਹੜਾ टेस्ट करेगा ਉਹਦਾ ਹੀ टेस्ट ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹੀਓ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਰ। ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੋ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਵੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਣੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦਿਖਾਓ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਓ ਬਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो फिर लोकल रिपोर्ट ना मानो, अच्छे लैब। हाँ, अच्छी लैब। गाइस कैसे हो आप लोग सब? तो मुझे जस ने छोड़ दिया था, मैं आ गई हूँ ऑफिस। बहुत लेट हो गया था क्योंकि ट्रेन मिल गई थी हमें एज यूजुअल सास्काटून में, आपको तो पता ही है। तो बस अपना ऑफिस आ गई हूँ अंदर। अब दिन की शुरुआत करते हैं, फिर आपको मिलेंगे बीच बीच में। व्हाट अ स्टार्ट टू द डे जी। 2 ट्रेनें मिल गई मेरे को एक ही दिन में। नेहा को छोड़ा पहले, तब ट्रेन, वापस आया छोड़ के, फिर से ट्रेन। हद है यार। मैसेज करना पड़ गया मैनेजर को कि आई विल बी 10 मिनट्स लेट। सो वन थिंग एनीवन वुड से आई हेट अबाउट सास्काटून इज द ट्रेन्स।
train tracks run through all the major मतलब parts of the city. चलो पानी भरा जाए। ये भी एक बहुत अच्छा वाटर कूलर है हमारे यहाँ पे ना, एंड इट हैज़ कोल्ड, स्पार्कलिंग, हॉट, एम्बियंट। मैं एम्बियंट लूँगी, रूम टेम्परेचर पे होता है। कोल्ड इज़ टू कोल्ड, स्पार्कली वाटर आई डोंट प्रेफर। मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाँ जी गाइस, तो लंच हो गया स्टार्ट। आई मीन मैंने तो खा के आई हूँ, बट फाइनली आई एम आउट टू इन्जॉय दिस ब्यूटीफुल फॉल वेदर। मैं पिछले 2 दिन से आ नहीं रही थी वॉक पे बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। हमारा एक्चुअली ना क्वार्टर फाइनेंशियल एंड होता है, तो बहुत बिजी चल रही थी। बट देन वंस यू गेट यूज टू वॉकिंग आफ्टर लंच, फिर बैठ के मज़ा नहीं आता। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आज तो मैं निकलो ही निकलो। जब आप देख रहे हो ना पीछे ट्रीज सारे ऑलमोस्ट लीव्स शेड कर रहे हैं, सो छुट्टी हो गई है, अब चलने लगे हैं नेहा जी को पिक करने। ये आ गए हैं, घर जा रहे हैं। आज का दिन कैसा था आपका जस जी? मेरा तो बहुत अच्छा था। मेरा वाज क्रेजी बिकॉज मेरा क्वार्टर एंड है। डिबेट इस बात की हो रही थी अभी कि भाई बनाना क्या है। नेहा जी कह रही थी सांबर, मैं कह रहा था पनीर। सो वी डिस्कस्ड, वी एक्चुअली डिसाइडेड ऑन बोथ, सांबर एंड पनीर। तुक नहीं बनती सांबर और पनीर की, ठीक है ना? नहीं बनते, फिर एक ही बना ले। फिर मैं कह रहा था सांबर सुबह लंच में चला जाएगा। मटर पनीर बना लेते हैं। नहीं, ओनली पनीर क्यूब फर्स्ट क्लास पनीर का पनीर पीसी भुर्जी। डाला। हाँ, भुर्जी नहीं, क्यूब डाला। ठीक है, मेरे को पता है। आई नो यू डोंट लाइक भुर्जी। जस को बताओ भुर्जी नहीं बनती, स्वाद बनती है पनीर की भुर्जी घिस के। नहीं, घिस के आई नहीं। जस्ट लव इट। मेरे को पीसीज वाला पनीर अच्छा लगता है। अभी जाऊंगी, कपड़े बदलूंगी और फिर आर्या के साथ आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसका हर क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती है। फिर मेरे नमक की जगह कुछ और डल जाता है, कभी मुझे याद ही नहीं रहता। कहती है इधर क्यों नहीं देख रहे हो आप, इधर देखो, मैं स्किपिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा कल इसने क्या किया, मेरे को कहती है मटर वाले चौल बनाते बनाते सारे मटर मम्मा ने गिरा दिए गैस पे, और गैस जली हुई थी डैडा। अरे पता कल क्या हुआ, और वो फ्राई इन द एयर हो रहे। इतना ज्यादा मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है। मेरे को कहती है पीछे देखो, मैं गैस की तरफ देख रही होंगी, मेरे को कहती है पीछे देखो और देखो मैं कितना अच्छा स्किपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने फ्रोजन वाला मटर का पैकेट उठाया, मैंने गैस पे रखा, उसी गैस पे मैंने 2 मिनट पहले वड़ियां उबाली थी, तो वो गर्म था, तो वो ग्लास टब बहुत देर तक गर्म रहता है, तो मैंने उसी पे लिफाफा जैसे ही रखा, वो फट गया और ऐसे पूरा खुल गया। तो उस इतनी जोर जोर से हंस रही है, मम्मा के मटर फ्लाई हो गए, मम्मा के मटर फ्लाई हो गए। वेडनेसडे आ गया, 2 दिन का और इंतजार है। कल आर्या की छुट्टी है, तो हम लोग जाएंगे अपनी अपनी। कल छुट्टी क्यों है ये बताना, कल क्या है? नेशनल डे ऑफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। सो ये एक नई स्टेट हॉलीडे फेडरल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है। हुआ ये था, थोड़ा टाइम पहले आपने सुना होगा, सस्कैचुअन एंड बीसी में रेसिडेंशियल स्कूल्स के जो बच्चे थे उनकी अनमार्क्ड ग्रेव्स पाई गई थी। मतलब रेसिडेंशियल स्कूल एक जो बंदा सिटीजनशिप की तैयारी कर रहा है ना, वो पढ़ेगा रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड हिस्ट्री ऑफ कनाडा एंड एवरीथिंग। तो हुआ ये था कि इंडिजिनस पीपल जिनका ये लैंड है, उनके बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल में डाल दिया गया था। रेसिडेंशियल स्कूल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था, और कई बच्चे वहाँ पे उनको वो दे डाइड एंड देन उनकी ग्रेव्स मिली बड़ी सारी अनमार्क्ड। सो आई थिंक उनके रिगार्ड में, उनकी ट्रिब्यूट में आज वाले दिन मतलब कल वाले दिन जो है सितंबर 30th, लाइक फेडरल लेवल पे उन्होंने स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर करी है टू यू नो रिमेम्बर देम, एंड इट्स इन देयर ट्रिब्यूट जो बच्चों के साथ हुआ था। इट इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एंड वेरी यू नो टेरिफाइंग। बच्चों को ले लिया गया घर से एंड ऑल दैट, इट्स अ बिग थिंग। घर आ गए हैं जी, वी आर होम। क्या हो रहा है? ये बातें हो रही है, कोई यहाँ पे कुसर हो रही है। आर्या बता रही है मेरे को स्कूल में आर्या ने क्या करा। Guys, keep guessing what I'm gonna be for Halloween. लेकिन इस बारी हेलोवीन जो है आ रहा ही नहीं है। No. 30th के बाद सीधा नवंबर 1 सीधा नवंबर 1 आ जाएगा। आज ही खाया है पनीर आपने? मटर पनीर। मैं तो बोल रही थी मटर पनीर खाना, तो कह रहे नहीं, मैं मशरूम तो खराब निकली थी ना, पनीर की पुर्जी। दाल बनानी मेरे को लगा विचार बदल गया। Mama, how many steps did you get? श्योर, मेरा आर्या का कंपटीशन होता है कितने स्टेप्स होंगे रोज।
37:11 only today. तो जब आर्या के स्टेप्स होने होते तब तो उतार देती है आके। हाँ, नहीं स्कूल में करके आती है ना ये। आइए की वॉच कहाँ पे है? आइए अभी मैंने दिखाई। आज इतने स्टेप्स करेंगे आइए की वॉच कहाँ पे है? वॉच दादू कह रहे हैं है ही वॉच नहीं। कहाँ पे है? आप लेके आए हो ना गाड़ी में पड़ी हुई है। भाई। ओ लो गाड़ी में छोड़ दी। चलो Are you not listening? सुन ले आया के स्टेप्स। 8908 8,000 I lost. फायर ड्रिल हुई है 9,000 में वॉकर है, फिर उसके बाद रिसेस गए हैं आउटसाइड टाइम। ओ 9,000 स्टेप्स। I lost फाइट it so badly. तो डांस कर रही है, डांस कर रही है। नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं घड़ी पहनता नहीं, मैं आके बोल सकता हूँ मेरे तो आज 11,000 हो गए थे। मेरे 12। तो अभी 12 हुए ने। ये बाहर तो आइया डांस वगैरह कर रही है, अपना लगा के आपको दिखाया मैंने। और नेहा सब्जी रोटी बना रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। जितना काम जल्दी हो जाए रोटी से पहले पहले, फिर रोटी के बाद ज़्यादा देर नहीं लगेगी और टाइम से लेट पाएंगे, थोड़ा टीवी देख पाएंगे। यार ये देखो मैं बाहर आया हूँ रोटी खाने और ये क्या कर रही है, ये देखो 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 कैसे डांस कर रही है। रोटी टेबल पे आ गई है और मैं भी बाहर आ गया हूँ और अब हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे अपनी रोटी। आपको बताया था पनीर पुर्जी बनाई है नेहा ने। टेबल हमारी सज गई है। आर्या के लिए तो इडली है, रोटी भी है, अभी थोड़ी देर में लाऊंगा। आर्या इडली सांभर खा रही है। हमें क्यों नहीं मिली इडली? इडली भी ये पुदीने की चटनी साथ खाती है। ये नॉर्थ इंडियन प्लस साउथ इंडियन मिक्स है। हमें नहीं इडली मिली, लेकिन आर्या को इडली मिली है। दैट्स नॉट फेयर। इडली मिलेगी आपको, सुबह मिलेगी, सुबह लंच में बनाऊंगी और मम्मी के लिए भी रख दूंगी, तो ताजी ताजी इडली सब खा लेना। अभी तो हमारे लिए फुलके हैं। देखो चटनी कैसे डाल रही है, देखो देखो। ये देखो पनीर देखो, लग रहा है ना बिल्कुल बाजारी पनीर है। ये पता नहीं क्या डालती है, शक्ल देखो पनीर क्या लग रहा है, बिल्कुल बाजारी ऐसे पनीर लग रहा है। नहीं कुछ करती है, ये कुछ गड़बड़ करती है, ये बताती नहीं है। मेरे को तो पुर्जी नहीं, ऐसा वाला पनीर ज्यादा अच्छा लगता है। बताना हमें कमेंट करके अपनी अपनी चॉइसेस कि आपको वो क्यूब्स वाला ये प्रॉपर पनीर की सब्जी पसंद है सुक्की, या फिर आपको वो पनीर घिसा हुआ जो भुर्जी होती है वो पसंद है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे। मुझे तो भुर्जी बहुत पसंद है, जस को क्यूब्स पसंद है। देखते हैं फिर क्या मेजोरिटी आती है। रोटी हो गई है, मजा ही आ गया। मतलब पनीर तो बहुत ही ज्यादा स्वाद था। उसके बाद ऑरेंज, कैरा ऑरेंज कॉस्को के, अगर आपने नहीं खाए तो मैं कहता हूँ आपने ऑरेंज नहीं खाया। इतना मीठा, मजा आ गया। मतलब मैं तो उसका ना ऑरेंज का पानी जो इसमें बच जाता है ना पीने के बाद, वो भी मैं मुंह लगा के पी रहा था। इट वाज कैंडी, इट वाज शुगर, इतना मीठा था, इतना स्वीट, कैंडी स्वीट। अक्टूबर 1 से हमारे यहाँ कोविड में एक रूल नया आ गया है। बिजनेसेस कैन नाउ आस्क फॉर प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। बिल्कुल, दे कैन ऑप्ट इन। सो रेस्टोरेंट्स में तुम जाओगे खाना खाने, तुम्हें प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन दिखाना है। आज हमारी ऐप निकली है यहाँ पे एक, जिसमें आप ऐप में अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख सकते हो। मतलब उस SK वेरिफिकेशन करके कुछ है, तो मतलब अब मैंडेटरी हो गया है। अगर एक और नया अपडेट है यहाँ, वो पता है क्या है, अब इन्होंने एसिम्टोमेटिक बंदों को टेस्ट करना बंद कर दिया। अच्छा। सो ये तब तक अब तुम्हें टेस्ट नहीं करेंगे जब तक तुम किसी बंदे के साथ कांटेक्ट में नहीं आए और वो पॉजिटिव हुए। और अगर तुमने खुद अपना चाहते हो मैं टेस्ट करा लूं, जैसे मेरे को एक बार मेरे एम्प्लॉयर ने बोला टेस्ट करा गया भाई, तो मैं टेस्ट कराने गया। यू हैव टू पे फॉर इट नाउ। हुआ ये है, अक्टूबर 1 से रूल ये है कि यू हैव टू शो प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। यहाँ बिजनेस में सपोज तू कहती है कि मैं वैक्सीनेशन के खिलाफ हूँ और मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, सो एज पर रूल तेरे को अगर कोई बिजनेस पूछता है 2 बार तुम्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा। और तू एसिम्प्टोमेटिक है, तू वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती, लेकिन वो बोलेंगे तेरे को कि फिर टेस्ट की रिपोर्ट दिखा, तो बार बार तुम टेस्ट करवाते रहोगे, तो उसके सरकार को उसके कहते हैं तुम पैसे दो। वो अलग बात है, जो एंटी वैक्सीन उन्हीं के लिए किया ये उन्हीं के लिए बड़ा अच्छा कदम है ये। इसमें उन्होंने ये डिस्करेज करा है लोगों को कि भाई या तो तुम वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखा दो या तुम नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दो। लेकिन तुम नेगेटिव रिपोर्ट कहां से लाओगे? टेस्ट कराने जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे। अब तो टीका फ्री में लग रहा है, तो इससे अच्छा तुम बार बार पैसे खर्च के टेस्ट कराओगे, टीका लगवा लो। ये गेम है। आज भी 390 केसेस थे, जिसमें से 85% वो थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। और कई सारी जो आजकल जॉब्स निकल रही है ना, उनमें साथ लिखा हुआ है कि यू मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड। मतलब बताओ यार, हर जगह आजकल ये नई रिक्वायरमेंट हो गई है। चलो जी, अब ना लेकिन स्कूल जाना है, जल्दी चलो, लेटो स्कूल जाना है। कल छुट्टी है ना। इसकी छुट्टी क्यों है? अच्छा, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन डे है ना, इसलिए छुट्टी हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती। हमारी कोई छुट्टी नहीं है। हमें ना ट्रूथ नहीं होता है, ट्रूथ। ओ ट्रूथ, ये देना मेरी
ये हमारा एक्सेंट ही सुधारता रहता है। बच्चा जो यहाँ पढ़ता है वो तो यहाँ की इंग्लिश बोलेगा जी। चले जी, मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने, नेहा अपना करेगी क्लीन अप एंड देन आर्या जाएगी अपनी शावर लेने। मेरा काम हो गया, मैंने वीडियो एडिट कर दी है और नेहा देख लो अब मेरा ऑडिट कर रही है, वीडियो एडिट का ऑडिट भी, क्या काटना चाहिए क्या रखना चाहिए। और यहाँ आर्या सो गई है अपने रूम में, दिख नहीं रही होगी, इधर बढ़ के सोई हुई है। एंड मैं बनाने लगा हूँ सुबह की कॉफ़ी। ये देखो सारा घर नेहा फर्स्ट क्लास क्लीन कर गई है। कॉफ़ी डन। अब मैं ब्रश करूँगा एंड देन थोड़ी देर टीवी देखूंगा। और मैंने बड़े दिनों बाद एक हिंदी सीरीज़ देखी है, कोटा फैक्ट्री, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। स्टोरी ऑफ पीपल हु स्ट्रगल टू गेट इनटू IIT, बच्चे बेचारे 11th 12th क्लास के। तो आई जस्ट लव्ड इट। आई मीन आई एम ऑन द सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ द सेकेंड सीजन। सो अच्छा, अगर आपने नहीं देखा तो देखना। एंड देन मेरा एक फ्रेंड बहुत जो कमेंट करता है हमें, उसने मैसेज लिखा कि होमलैंड कहाँ पे है, किस प्लेटफॉर्म पे है। होमलैंड एक्चुअली जो है वो नेटफ्लिक्स पे है। नेहा जी का बुलावा आ गया। सब ठीक है जी? कोई गड़बड़ तो नहीं वीडियो में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो जी हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड बोलने वाली सारी आज हो गई है वो, बट मैं बोल देती हूँ गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गिव अस ऑल योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। प्लीज 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 सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू।